Good morning, student. Yesterday we have done a topic finding rational number between two numbers. Today we will do another important topic, convert decimal into P upon Q form. This is very important topic from chapter number 1, number system. Let's take an example. Suppose we have given 2.3. This is the decimal form, and this form we have to convert this form into P upon Q form or rational form. So how we will do? Suppose 2, we will add here 3. After the decimal we have one digit, so we write 10 here. After removing the decimal we will write 10 here. Suppose another example, we have 2.35. What we will do? We will write 235 upon 100, because after the decimal we have two digits. Similarly, suppose we have 2.314. After decimal we have 3 digits. So when we remove this digit, we will write 314, and here after the decimal we have the 3 digit. So upon we will write 1000. This is the simple way of converting decimal into P upon Q form, right? Suppose if we have the decimal in the bar form, let's take an example. Suppose we have 0.6 and we will have 6 bar. Bar means you know, if we divide some fraction, the answer is 0.66666. This is the decimal form, and we have to convert this decimal form into P upon Q form. So how we will do? We will do this question step wise steps. हम इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे? स्टेप वाइज स्टेप हम इन क्वेश्चन को करेंगे. आपको स्टेप्स ध्यान रखने हैं और आपके क्वेश्चन आंसर आ जाएगा. सबसे पहले हम लिखेंगे लेट x equal to 0.6666 so many times. You can write 3-4 times. And here we have bar in one digit, so we will write multiply both side by 10. So if we have bar in 2 digit, we will write multiply both side by 100. If we have bar in 3 digit, we will write multiply both side by 1000. Here we have a bar in only 1 digit, so we will write multiply both side by 10. So when we multiply x by 10, it become 10x, and when we multiply 0.66666 and so on by 10, our decimal shifted to here, one step here. So we will write 6.6666 and 6 will get, right? As many times you can, right? This is our first equation and this is our second equation. We will subtract this second equation, first equation by the second equation. How we will subtract? Here we have equal to, we will write here equal to, before equal to we have x, so we will write here x. और इसमें जब हम ये डेसिमल वाला इसके नीचे लिखेंगे, हमें ये ध्यान रखना है कि जो इसका जो डेसिमल है वो उस डेसिमल के नीचे आना चाहिए, बिकॉज माइनस करने के लिए डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, और डेसिमल से पहले हमारा क्या है 0, फिर हमारे पास 666 है, और आप 2-3 बार लिख देंगे, 2-3-4 बार टाइम्स ऐसे लिख देंगे. अब इसको करना है हमें माइनस, राइट? 6 में से 6 जाएगा 0 0 0 0 0 and 6 minus 0, it becomes 6. And here 10x minus x equal to 9x. So x equal to 6 upon 9, or this become 6 3 2s are or 3 3s are. So x equal to 2 upon 3. This is the P upon Q form of 0.6 bar. आप लोगों को इस क्वेश्चन में बस ध्यान रखने वाली चीज क्या है, जब आप इस फर्स्ट वाले इक्वेशन को सेकंड वाले से माइनस करते हैं तो आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है. अगर आप डेसिमल को आगे पीछे लिखेंगे तो सेपरेट करने में आपकी प्रॉब्लम होगी, आपका आंसर गलत निकलेगा. बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है. तो ये आपका इसका क्या आ गया, 0.6 बार का आपका डेसिमल फॉर्म आ गया. चलिए आप इसका एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं. सेकंड एग्जांपल में हम लेते हैं 0.35 और आपका यहाँ पे 35 के ऊपर बार है. ये आपका डेसिमल फॉर्म है. इस डेसिमल फॉर्म को हमको P अपॉन Q फॉर्म में
चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, आपका पहला स्टेप क्या था, लेट x इक्वल टू 0.35। यहाँ पे हमारे पास 35 के ऊपर बार है, इट मीन हमारे पास 35 बार बार आपका रिपीट हो रहा होगा किसी भी नंबर को डिवाइड करने के बाद, डैश डैश डैश। और फिर हमारा सेकंड स्टेप में हमने क्या किया था, हमें मल्टीप्लाई करना था 10 से, 100 से या 1000 से। वो हमें कैसे पता लगेगा किससे मल्टीप्लाई करना है, जितने नंबर के ऊपर बार आता है उसके अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर के ऊपर बार है, सो वी विल राइट हियर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, राइट। अगर हम दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे यहाँ पे x जो है इंटू 100 क्या बन जाएगा, 100x इक्वल टू, अब हमें यहाँ पे इसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, हमें पता है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका डेसिमल है, 2 स्टेप मूव हो जाएगा, 1 2, ये आपका डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका नंबर बन जाएगा 23.5। ये डेसिमल आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, 23.5, देन 353535 एंड सो ऑन। अब उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि जो पहला स्टेप हमारा फर्स्ट स्टेप आया था उसको हमें इससे माइनस करना है, तो इसके नीचे लिखना है। कैसे लिखेंगे, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू से पहले क्या है यहाँ पे x, और इसको ध्यान से लिखना है इसके नीचे। इसको कैसे लिखेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे, राइट। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा, यहाँ पे डेसिमल से पहले क्या है इसमें 0, और डेसिमल के बाद आपका आ रहा है 2 3 5 3 5 3 5 और 2-3 बार लिख देंगे। अब इसको करेंगे हम लोग माइनस, ये आपका 0, ये 0, ये 0, ये 0 सब 0 हो जाएगा। ये 5 माइनस 2 कितना होगा आपका 3, देन 0.3 और ये आपका 2 इक्वल टू 100x माइनस x, ये आपका बन जाएगा 99x। सो आपका x इक्वल टू आ जाएगा 23.3 अपॉन में 99। ये आपका डेसिमल फॉर्म में भी है, फ्रैक्शन फॉर्म में भी है, इसका डेसिमल हम हटाएंगे तो नीचे 1 0 लगा देंगे, तो आपका आ गया 233 अपॉन 900। तो ये आपका इस फ्रैक्शन का, इस डेसिमल का p अपॉन q फॉर्म में, ठीक है। अब फिर एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज हमने एनसीईआरटी से एक और एग्जांपल है 0.001 और यहाँ पे हमारे पास जो बार है 001 के ऊपर है, तो हमें पहला हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, लेट x इक्वल टू 0.001, यहाँ पर 001 के ऊपर बार है, 001 बार बार आपका रिपीट हो रहा होगा 001 एंड सो ऑन। यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड, क्योंकि इस बार जो बार है आपका वो आपका 3 डिजिट के ऊपर है, तो 3 डिजिट के ऊपर बार मींस हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें बताया था अगर 1 डिजिट के ऊपर बार होगा तो 10 से, 2 डिजिट के ऊपर बार होगा तो 100 से। यहाँ पर 3 डिजिट के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000 करेंगे। यहाँ पे x से हम 1000 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका बन जाता है ये 1000x, और यहाँ पे अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं राइट हैंड साइड में तो ये जो आपका पॉइंट है 3 स्टेप इधर मूव हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो आपका बन जाएगा 1.001 एंड सो ऑन। अब उसके बाद हमने फर्स्ट इक्वेशन को इससे माइनस करना है, वही तरीका x इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखा, इक्वल टू से पहले क्या है हमारे पास x है, और इक्वल टू के बाद हमें जब ये वाली लाइन लिखनी है तो ध्यान क्या रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, और डेसिमल से पॉइंट से पहले क्या है यहाँ पे 0, और पॉइंट के बाद क्या है 001 001 और 001, आपको 2-3 बार इसे लिख लेंगे। अब शुरू करना है हमें माइनस, तो माइनस कैसे करेंगे, ये आपका 0 बन गया, 0 बन गया, सारे आपके 0 बन जाएंगे, 1 माइनस 0 आपका 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1000 माइनस x, ये आपका बन जाएगा 999x। सो x इक्वल टू 1 अपॉन 999। ये आपका क्या है, इस डेसिमल का p अपॉन q फॉर्म है। ऐसे ही मैं आपको कुछ और क्वेश्चन देता हूं, आप इसमें घर पे सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है हम कल डिस्कस करेंगे। तो राइट डाउन द क्वेश्चंस। 1.27 और आपका 7 के ऊपर बार है। नेक्स्ट 0.2 यहाँ पे 2 के ऊपर बार है। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन 18.47 यहाँ पे आपका 47 के ऊपर बार है। नेक्स्ट 1.325 और इसमें आपका 325 के ऊपर बार है। आपके 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं, आप इसको ट्राई करेंगे, बाकी कल हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर
Thank you.